Assalamualaikum dear students, I hope you're well. It's me Myra and I'll be giving you a second lecture on reading. So in our first lecture we covered several tips. I hope you remember and you have memorized all those. So I'll share my screen and we will do some practice. Okay, so before moving on, let's revise previous tips. So we covered 10 tips. The first one is read pretext. Okay, then the second one is go straight to the questions and then do not attempt general questions first. Make reading summaries. Attempt line specific questions first. Read 2 to 3 lines above and below the specific lines. Always have evidence to back up your answer. Use process of elimination, and then dual passages should be done like separately, not one at a all together. It will be one at a time. And then last one is predict an answer before reading option. Okay. So let's move on to our practice because today's lecture is entirely on practice. So we have learned several tips. So we will be applying them. So let's move on to our passage. I hope you guys know that what is the first thing that we have to do. This is reading the blurb. Okay, so we will read this blurb. So what is here? This passage is adapted from William Maxwell. The Folded Leaf, 1959 by William Maxwell, originally published in 1945. Okay, so this is giving us some general overview and the time period, right? There is not too much in this blurb, so let's move on to our passage. But before reading the passage, what is the first thing that you should do? That is, you should read the question and try to see that what are the main points that this passage is going to cover, and then specifically focus on those particular points in your passage. Okay, so this is your first thing to do. So question number 1 is stating, over the course of the passage, the primary focus shifts form, right? So focus होगा आपका पहले पार्ट में और फिर वो शिफ्ट हो रहा है, okay, over the course. ठीक है, so पूरा passage consider करना आपने, right? Let's move on to our second question. So what is it stating? The main purpose of the first paragraph is to what? So जब आपने पहले paragraph में जाना है, so you should know that you have main purpose question. ठीक है, so आपने उसको entirely consider करना है to tell the main purpose. Third one is, it can reasonably be inferred that Irma, the waitress, thinks Laini is through eating because what? So कोई चीज हुई होगी तो हमने वो search करनी है, right? Line 37, this is a specific question. For the saying Laini's primary impression of the party of 4 is that what? So उसका कोई impression होगा, right, of some people, right? So we underline this part, and then it is the evidence question. So we have to back up our answer, this one, with the evidence, right? So यहाँ पर हम evidence ढूंढेंगे. Then we move on to question number 6. So question number 6 is stating, the narrator indicates that Laini finally closes the history book because what? So उसने book close की थी, maybe because of some reason जो यहाँ पर provided है, so उसने book close की, हमारे पास एक point आ गया. Then we move on to 7th. It is stating the primary impression created by the narrator's description of Mr. Peters in these lines is that he is what? Again, this is a specific question. So the impression hoga of Mr. Peters, so we have to search for that. Then question number 8 is stating the main idea of the last paragraph is that what? So again, last paragraph को भी आपने main idea के लिए देखना है. Then we move on to question number 9. So apparently हमें लग रहा है कि ये evidence question है of the previous question, right? Question number 8 का. But if you look at this line, so it is saying that which choice
best supports the conclusion that Mr. Peters wants to attract attention, right? So attraction उसने attention उसने grab की होगी, ठीक है. उसके बाद लाइन 93 में आपने देखना है कि becoming का क्या मीनिंग है, ठीक है. So too much content. So I want you guys, because it's a recorded lecture, so first pause this video and then try to figure out that what is the main theme of this passage. Okay, so come up with your judgment, come up with your prediction, because अब हमने जब questions पढ़ लिए, so there should be something that we should learn from these questions, ठीक है. So अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो एक आइडिया मुझे ये मिल रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में लाइक इसके बाद हम देखते हैं कि लाइनी कैरेक्टर है, ठीक है, और वेट्रेस थी अर्मा, और लाइनी इज ईटिंग समथिंग, और उसके बाद पार्टी ऑफ 4 थी, उस पर इम्प्रेशन क्या था, लाइनी पर क्या इम्प्रेशन था उन लोगों का, राइट. सो कोई सेटिंग बताई होगी उसने, फिर एंट्री बताई होगी, एंड देन उसने जब क्लोज की हिस्ट्री बुक तो क्या हुआ था, तो वो हिस्ट्री बुक भी पढ़ रहा है, ठीक है. उसके बाद मिस्टर पीटर भी एक न्यू एडिशन हुई है कैरेक्टर की, सो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस कैरेक्टर एज वेल इन आवर पैसेज. मिस्टर पीटर भी आए हैं, और फिर मिस्टर पीटर पे ही कोई बात हुई है, राइट, एक क्वेश्चन में भी, और फिर मिस्टर पीटर पे हुई है कि ही वांट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन, तो किसी चीज़ पे अट्रैक्ट की होगी, राइट. सो प्रीटी मच इट. सो हमें एक जनरल ओवरव्यू मिल गया, इस तरह की कोई बात हुई होगी जिससे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता दिए, ठीक है, राइट. सो प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू ट्राई टू सी दैट ये स्टोरी किस तरह से अनफोल्ड हो रही है. ओके, सो ट्राई टू सी इट एज अ मूवी, बिकॉज मूवी में इसी तरह होते हैं, हम काफी अट्रैक्टेड होते हैं, देन वी रीड इट, सॉरी वी वॉच इट, और फिर हमें हुक मिलता है, और इस तरह से हमें मजा आता है. इसी तरह आप इसको भी कंसिडर किया करें कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर मूवी, ठीक है. ओके, सो आई वांट यू गाइस टू रीड दिस पैसेज, लाइक अगेन पॉज इट एंड ट्राई टू रीड एंड फोकस ऑन मेन पॉइंट्स, ठीक है. अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मेन पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा. सो मेन पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा? बाय रीडिंग द क्वेश्चन एंड मार्किंग दोज पॉइंट्स. अब उन्हीं को आपने इस पैसेज में भी सर्च करना है, ओके. अच्छा, सो इसको पॉज करें वीडियो एंड देन ट्राई टू रीड. ओके, आई होप यू हैव रेड टिल नाउ. तो इसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देती हूँ दैट दिस पैसेज वाज टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट, ठीक है. यहाँ पर आपको सेटिंग बताई कि क्या था और रेस्टोरेंट क्या था, और डेकोरेशन किस तरह से थी, और फिर उन्होंने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया लाइन, ओके. ही सैट डाउन एट अ सेकंड टेबल, फिर उसने ऑर्डर किया डिनर. अब लाइनी से यू मे थिंक दैट इट इज लाइक मे बी ही लाइनी इज अ गर्ल, बट ही लाइनी इज एक्चुअली अ बॉय, ओके. हिज डिनर से हमें पता चल रहा है, ओके. उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सारी यही बात बताई कि हिस्ट्री बुक पढ़ा था, और क्या था उसमें, और ये सारी चीजें, ठीक है. सो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको उन्होंने एक सेटिंग प्रोवाइड किया, डिस्क्रिप्शन बताई है कैरेक्टर की, ओके. सो प्रीटी मच दैट. सो वी नो दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है. अभी हम बस इसको मैं भी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, बट व्हेन यू रीड आपने इसको थ्रू आउट रीड करके फिर क्वेश्चंस पर जाना है, ओके. सो अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. देन देयर वाज दिस थिंग जहाँ पर उन्होंने बताया कि लाइनी ने क्या रीड किया, फिर यहाँ पे बुक के बारे में सर आपको बता दिया, ठीक है, हियर. एंड देन यहाँ पर भी बुक के अंदर क्या था, सारी वॉर वगैरह उसके बारे में बताया. देन देयर वाज अ मेन पॉइंट, अ पार्टी ऑफ 4, 2 मेन थे और 2 वुमेन थी, और वो रेस्टोरेंट में आए, ठीक है, और वो सारी बातें कर रहे थे और काफी डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहे थे. ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे बता दी और पेरेंट्स भी बता दिए, ठीक है. सो यहाँ से आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए. Now you don't have to focus very much on these details because we know that इस तरह का क्वेश्चन नहीं था कि पेरेंट्स कैसी थी या इस तरह से.
So be mindful of these things because we don't want to waste our time because actually there is a time crunch and we have to follow the set criteria. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर भी यही बात हो रही थी, क्या किया उसने. और फिर यहाँ पर again there was a main point that before Limey got halfway through them, जो book को पढ़ा था, a coat that he recognized as his father's was hung on the hook next to his chair. So उसके father की entrance यहाँ पे आपको बताई. So hopefully Mr. Peter होंगे because एक character वो भी था. उसके बाद उसने क्लोज किया और उसने कहा I didn't think you were coming. और इसके बाद मिस्टर पीटर की बात की. ठीक है, उसने लूज किया हुआ था वेट और एजेड हो गया था और देन देयर वाज दिस चेंज बट ही वाज नॉट अवेयर दैट ही हैड एनी चेंज. ठीक है, और उसको हमेशा लगता था कि वो यंग है और इस तरह की सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई. ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम दिस पैसेज. हमें आइडिया हो गया कि पैसेज किसके बारे में है. देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चंस में जब हम पहले पार्ट को देखते हैं ओवर द कोर्स ऑफ पैसेज द मेन फोकस है. सो शुड वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट? एक्चुअली वी शुड नॉट. व्हाई? बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ द पैसेज देखें मतलब हमने पूरे पैसेज को कंसिडर करना है एंड वी शुड नॉट बी अटैकिंग दिस क्वेश्चन एट द फर्स्ट स्टेज. जस्ट स्किप दिस. ठीक है, इसको भी आपने नहीं करना. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. मेन पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. सो ऑब्वियसली वी शुड डू दिस. Why? Because ये आपका specific question अब बन गया because we have told you that it's the first passage जिसकी आपने main purpose बताना है. ठीक है, अगर whole paragraph के बारे में passage के बारे में होता फिर हम इसको ना करते, but it is from first paragraph so we should be doing it. ठीक है, so इसको आप attempt करें, pause the video and then attempt it and then see that your answer matches with mine or not. Okay. तो पर्पस क्या था मेन फर्स्ट पैराग्राफ का? दैट वाज टू डिस्क्राइब अ प्लेस, टू टेल अबाउट द ऑब्जेक्ट. सेटिंग बतानी थी, राइट? इस वजह से उन्होंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया था और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की थी. ठीक है, सो इस वजह से सी इज द ऑप्शन. नाउ इफ यू लुक एट क्वेश्चन ऑप्शन ए. सो यहाँ पर वो बता रहे हैं इंट्रोड्यूस द पैसेज मेन कैरेक्टर. राइट, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था बाय शोइंग हिज नाइटली हैबिट्स. मतलब हर रात जो वो करते हैं. एक्चुअली नो, बिकॉज एक स्पेसिफिक मोमेंट उन्होंने बताया कि वन इवनिंग ही वाज डूइंग दिस, नॉट हिज हैबिट. राइट, सो इस वर्ड की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी और बाकी भी आप देखें दे विल नॉट मेक सेंस एंड देन सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, then let's move on to question number 3. तो यहाँ पर लाइन 37 में आपने देखा है कि लाइमी इज टू ईटिंग. ओके, और कैसे उसको पता चला था कि ही इज टू ईटिंग? उसने क्या किया था? लाइक लाइमी का क्या एक्ट था जिस वजह से अर्मा को लगा था कि ही इज टू ईटिंग? सो लाइन 37 में आप चले जाए. 37 is here. So this is again a line reference question. So remember, one of the tips was that you have to read 2 lines before it and 2 after it. So read it. यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है. ओके, सो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि लाइमी ने अपना फॉक्स पुट डाउन किया था. राइट, सो इस वजह से उसको लगा अर्मा को दैट ही इज टू ईटिंग. सो यहाँ पे आप देखते हैं. So C option is making sense. Moving on to question number 4 and question number 5 is the follow-up question. So party of 4 का impression क्या था लाइन पे? ये हमने पढ़ा था. So that was कि उसको वो noisy और distracting लग रहे थे और यहाँ पर आपने line reference search करना है. So you can look at A, B, C and D. But we know that when they were entering, so यहाँ पर इनकी बात हुई थी. राइट, ये वाली जब वो आए थे. So obviously इसका जो आंसर लाई करता होगा वो 47 या 55 इन लाइन्स में लाई करता होगा. मोर चांसेस है. So let's look at 47 to 52. ठीक है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक है.
सो यहाँ पर देखें क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि वो डिस्ट्रैक्टिंग या नॉइजी थे? एक्चुअली नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ अपीयरेंस बताई थी, ओके, ऑफ वन ऑफ द वुमेन। मूविंग ऑन टू ऑप्शन सी, सो 55 to 59 इसमें देख लेते हैं। Here it is written, but it was the women's voices, the terrible, not quite sober pitch of the women's voice, which caused Laini to skim over pages, right? So यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि पिच काफी हाई थी और जैसे लाइनी ने भी स्किम किए थे पेजेस, राइट? सो डिस्ट्रैक्टिंग था, एनवायरमेंट नॉइजी था, इस वजह से ये आपका आंसर होगा, ठीक है? सो सी इज द राइट ऑप्शन एंड हियर इज मैचिंग विद द सी ऑप्शन। सो ऑलवेज सी कि जो इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है और इसका एविडेंस जो है वो इसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? सो दीज आर सपोर्टिंग ईच अदर। आई होप दैट इज क्लियर। Okay, let's move on to question number 6. So question number 6 is stating, the narrator indicates that Laini finally closes the history book because what? So now we remember कि उसने कब book close की थी? जब उसके father appear हुए थे, ठीक है? So अगर आपको content याद हो so आप इसको कर सकते हैं easily. So A is the right option. So you can also check B, C, D. They are not making sense at all. Just get rid of them. Moving on to question number 7. Question number 7 is stating, the primary impression created by narrator's description of Mr. Peters is that he is what? So यहाँ पर आप line reference में चले जाए 74 to 79. So 74 is there. So यहाँ पर Mr. Peters की बात हो रही थी. So we can read it. अब यहाँ पर जो आपको उन्होंने बताया है कि उसके जो हेयर थे वो ग्रे हो गए थे, ठीक है? उसने लूज किया था वेट और क्लोथ्स उसको फिट नहीं कर रहे थे, कलर पुअर था। सो ऑल ऑफ दिस इज टेलिंग दैट ही इज एक्चुअली एजेड, ठीक है? एजिंग हो रही है, उसको शिवल हो रहा है, नॉट हेल्दी एंड फिट, बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू व्हाट इट इज स्टेटेड, ठीक है? एंग्री की बात नहीं हुई, मेनेसिंग की बात नहीं हुई, नर्वस की बात नहीं हुई, हेजिटेंट की नहीं हुई, राइट? सो दैट इज व्हाई डी इज द राइट ऑप्शन। Moving on to question number 8. So last paragraph का आपने मेन आइडिया बताना है और उसमें आपने स्पेसिफिकली बताना है कि मिस्टर पीटर के बारे में कोई बात होगी। ओके, सो ट्राई टू सी दैट वे। तो इसको आपने अगर स्किम करना है तो उसी वक्त आप कर सकते हैं दोबारा, बट डोंट get bogged down on each and every detail because हमने एक दफा रीड कर दिया है और इसका आपको पता होना चाहिए। सो इसमें क्या था कि he was not aware कि उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है? और वो हमेशा के साथ से एक्ट करता था कि यंगर वर्जन ही है उसका अभी तक, और वो उस चीज को रिकग्नाइज नहीं करता था, राइट? सो 8 का ऑप्शन आप देखें, which one is making sense? So actually B is making sense because he was behaving as he is a younger version of himself, right? वो ओल्ड भी हो गया था बट फिर भी वो इस तरह के काम करता था कि अपने आप को पोर्ट्रे करता था एज ए यंगर पर्सन, ठीक है? सो बी इज द राइट ऑप्शन है। Okay, so question number 9 is stating, so conclusion आपने यहाँ पर देखनी है that Mr. Peter wants to attract attention, ठीक है? So वो हमेशा attract करता था attention. So what is this thing that is pointing towards attraction? So यहाँ पर आपने search करना है. So go to all the line references and try to see that which is giving you answer for this particular question, ठीक है? अब हो सकता है लाइन रेफरेंसेस में मिस्टर पीटर्स की बात हो बट हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, सो जस्ट डोंट गो फॉर दैट, ठीक है? यहाँ पर देखें आप जैसे सी ऑप्शन में मिस्टर पीटर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ये ना हो कि आप सी को चूज कर लें बिकॉज मिस्टर पीटर का नाम लिखे, बट नो, बिकॉज
बाकी ऑप्शन में भी लिखा हो सकता है. So actually B is the right option where you will be getting the gist कि Mr. Peters जो है वो attract करता था attention. ठीक है. So 81 to 85 में आप देखें और इसको रीड करें. So यहाँ पर ये बात हो रही है. Okay, so try to read it and skim to it. Okay, I hope that is clear. Then we move on to the last question. So that is question number 10. So this is vocab in context question. So becoming का आपने contextual meaning देखने से remember that we need to get the contextual meaning. हमने dictionary meaning को नहीं देखना होता. You have to look at the contextual meaning. So always go back to these lines and then try to see कि इसका contextual meaning क्या है. ठीक है. So becoming देखते हैं 93 में. You can read it. He was always there tugging at Mr. Peters' elbow, making him do things that were not becoming in a man of 45, right? So जो चीजें 45-year-old men में नहीं होनी चाहिए वो उसमें थी और वो उसे younger version ये करवाता था. So what is that? या आप इसको read करें and then try to see that which is making sense. So emerging, so something was emerging, not really. ठीक है. emerge करना यहाँ पर वो आइडिया कैप्चर नहीं हुआ. जैसे हम कहते हैं क्रिकेटर इमर्ज हो गए, राइट? तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई. डेवलपिंग, सो क्या कोई चीज डेवलप हो रही थी. हैपनिंग और फिटिंग, सो एक्चुअली ही यूज्ड टू डू सम एक्ट्स व्हिच वर नॉट फिटिंग द मैन ऑफ 45, राइट? सो दैट वाज द थिंग दैट दे वांट टू टेल थ्रू दिस लाइन. ठीक है. जो फिट नहीं करती थी उन चीजों को भी मिस्टर पीटर्स करता था. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट यंगर वर्जन. Okay, so I hope this message is clear. If you face any problems, so try to reach out to us. Okay, and we will be moving on to message number 2 and something. Okay, so now we will be moving on to our second passage. Okay, so again, try to memorize those tips and apply on this passage as well. So first of all, read the blurb, so what it is stating. This passage is adapted from Ryan Walsh. Whole food blues, why organic agriculture may not be so sustainable. Okay, so organic agriculture के बारे में बात हुई है और बताया कि why it is not sustainable. ठीक है. So this is the main idea. Let's move on to this passage questions. So before reading, we'll move on to the questions. So questions में again आपने उसी तरह से करना है. Read your question and try to underline the main ideas. ठीक है. So as used in line 14, simple most nearly means, so simple का हमने meaning देखना होगा. According to the passage, a significant attribute of conventional agriculture is its ability to what? Okay, so यहाँ पर हमने attribute देखना of conventional agriculture. ठीक है. So conventional is something opposite to organic agriculture. Okay, तो इसकी ability थी उसको हमने देखना है. Then we have which choice best reflects the perspective of the environmentalist on conventional agriculture. So perspective होगा environmentalist का. In line 27 we have to read this. ठीक है. फिर evidence देखना है हमने इसी का. फिर हम move on करते हैं to question number 26. So which statement best expresses a relation between organic and conventional farming? हमने relation बताने जो present हुआ था paragraph में, passage में sorry. ठीक है. फिर उसका evidence बताना हमने. 28 में they are saying, according to Fuller, an
agriculture, ideal global agriculture system is what? So जो ideal global agriculture system है वो किस तरह का है, ठीक है. Then we move on to 29. So it is stating in line 88 share most nearly means. So इसका हमने मतलब देख लेना है. उसके बाद है which statement is best supported by the information provided in figure 1. So figure को हमने यहाँ पर देखना है. उसके बाद which of the following claims is supported by figure 2. So figure 2 में हमने देखना है कि क्या claim support हुआ है. And then it is it that. ठीक है. So ये आपका complete हो गया. अब हमने देखना है कि हमारी prediction होनी चाहिए कि ये passage किसके बारे में हो सकता है. So actually from our questions we have found that it is actually going to be on conventional and organic agriculture. ठीक है. perspective होगा environmentalist का है और भी किसी का हो सकता है. उसके बाद उनका relation बताया हुआ है. ठीक है. और global जो agriculture system है उसमें क्या होना चाहिए. That's it. It's a very straightforward one because organic का भी हमें पता है और इसका conventional का भी पता है. So it's going to be very easy. Let's move on to our passage. So again, pause the video and then try to read. Take some minutes and try to grasp information and focus on main ideas. ठीक है. जो main points है वहाँ focus करें. So do it and then come back and do questions. So I hope you guys have read. Let's come to this passage and मैं इसका overview आपको दे देती हूँ. So यहाँ पे क्या बात हुई है कि पहले उन्होंने काफी बोल्ड स्टेटमेंट किया. when it comes to energy everyone loves efficiency. So सबको efficiency पसंद है. ठीक है. जिससे waste कट डाउन हो जाता है और एनर्जी और एफिशिएंसी हमारे पर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम it has a conventional industrial agriculture has become incredibly efficient. So जो conventional है वो efficient हो गए. किस तरह से यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया था. ठीक है. फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है और आपके पास yield ज़्यादा आ जाती है. So this information. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपने अगेन पढ़ा this is not how most environmentalists regard this their irregular a leafy green. They have embraced organic food as better for the planet and healthier and tastier. So we know that there was a question on environmentalist. ठीक है. So यहाँ पर आप स्टार्ट कर दें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जब आप पढ़ रहे हैं. ठीक है. और इसको क्लोजली रीड करें. और यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो बेटर है. ठीक है. तो उनका ये पर्सपेक्टिव था. उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग yields 25% fewer crops on average than conventional agriculture. So यहाँ पर अगेन बात हो रही है कि fewer crops वो देता है. So conventional better हुई यहाँ पर. ठीक है. So back and forth को move करें, comparison बता रहे हैं, relation बता रहे हैं. Then there was an experiment या analysis हुआ था of 66 studies और फिर उन्होंने यहाँ पर सारी information आपको बताई है कि organic farming ने deliver किया था lower yield and compare किया था conventional agriculture से. ठीक है. और यहाँ पर उनको statement भी दे दिया कि conventional agriculture outperform organics by more than 25%. Okay. उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से उसने outperform किया. The main difference is nitrogen. So nitrogen क्या करता है. यहाँ पर उन्होंने अगेन यहाँ पर बता दिया कि conventional agriculture में nitrogen enables much faster plant growth. ठीक है. तो ये आपको उन्होंने बता दिया. Then they said this कि सारा नाइट्रोजन क्रॉप्स में नहीं जाता बल्कि थोड़ी सी पोल्यूशन भी क्रिएट होती है. नॉट थोड़ी बट ज़्यादा क्रिएट होती है. ठीक है. तो यहाँ पे बता दिया उन्होंने. उसके बाद conventional agriculture also heavily depends on what chemical pesticides. So again side effect of conventional fertilizers and farming. उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई कि conventional agriculture is more efficient, sometimes much more efficient than organic farming. और फिर उन्होंने आपको आगे बताया कि जो ideal
ग्लोबल एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसका भी क्वेश्चन था, that may borrow the best from both systems. So दोनों सिस्टम में से कुछ बेस्ट ले ले और आपका आइडियल एग्रीकल्चर सिस्टम बन जाएगा. ओके, यहाँ पर अगेन उन्होंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि किस तरह से हम दोनों को ले सकते हैं, बोथ सिस्टम्स को. एंड देन दे सेड दैट वी नीड टू डिप्लॉय डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड. सो दैट्स इट. यहाँ पे हमें काफी क्लैरिटी हो गया है कि डिफरेंस बताया हुआ है, रिलेशन बताया हुआ है. Some are good points of conventional agriculture and some are bad. Same is the case in organic farming as well. ठीक है? So I hope you understood this passage. Then there are figures as well. So figures को आप अभी ना देखें, I would say, because you will just be very confused with that. ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा ना तो फिर आप देखें कि इसमें हो क्या है. ओके, अगर आपने इसको स्किम करना है, so just read the heading. Just read that. Not try to go in detail. तो उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा. सो सिर्फ आप देख लें हेडिंग को. ठीक है, जब इसको देख लिया, जब पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस पे मूव ऑन करना है. एंड रिमेंबर, आवर टिप वाज वी हैव टू डू स्पेसिफिक क्वेश्चन फर्स्ट. सो क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है वो करें. लाइन रेफरेंस क्वेश्चन जो जनरल है उसको अभी आपने नहीं करना. ठीक है, तो डू देम इन दी एंड. इन दी एंड करें और फिगर क्वेश्चन से पहले करें. ठीक है, तो प्राइमरी आपने फिगर क्वेश्चन क्लास पे करना. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 में सिंपल का मीनिंग देखना है, ये आप लोग कर लेंगे. आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू. इस सिंपल का मतलब क्या है? सो व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? गो बैक टू लाइन नंबर 14 एंड ट्राई टू सी द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या ड्राइव हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है सिंपल here. So agriculture has become incredibly efficient on a simple land to food basis. So simple land, what does it mean? So try to look for a synonym in your surrounding sentences. ठीक है, so line reference है, एक लाइन पहले पढ़ ले, एक लाइन बाद में पढ़ ले, या दो पहले पढ़ ले, दो बाद में पढ़ ले. तो इससे पहले एक लाइन है तो हम इसको यहाँ पढ़ लेते हैं और एक दो लाइन हम यहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसको पढ़े और सी द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. ठीक है, सो यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि लैंड पे भी और फूड बेसिस पे भी एफिशिएंट है. ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास ऑप्शन है और आपके पास there are other option. Unadorned, so decorated, undecorated, no, actually ये तो सेंस नहीं बना रहा. ठीक है, it was not decorated. Modest, so modest आप इस केस में यूज कर सकते हैं. No, contextually it is not fitting the context. ठीक है, easy, oh, easy land, no, it is not making sense. So land के साथ देखिए कौन सा एडजेक्टिव फिट इन हो रहा है. ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंड जो है उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे. Then we move on to question number 23. So it is stating a significant attribute of conventional agriculture. So what was that? ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि attribute क्या था जब आप इसको रीड कर रहे थे. So what is the thing that conventional agriculture provides? So that was कि वो मैक्सिमाइज कर देते आपका आउटपुट. तो अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आपने पिक इन करते, सो आप यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल फार्मिंग की उन्होंने आपको यहाँ पर काफी डिटेल दी थी, राइट? कि फर्टिलाइजर से क्या होता है, आपकी जो क्रॉप है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है. ठीक है, गेट्स मोर एंड मोर क्रॉप. दैट वाज द एविडेंस. ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन रेफरेंस नहीं दी, बट उन्होंने आपको आइडिया प्रोवाइड किया हुआ है इन द पैसेज. सो ट्राई टू मैच इट विद दैट. ठीक है, सो यहाँ पे आपने इसको चूज किया बी ऑप्शन को. देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. सो एनवायरमेंटलिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या था कन्वेंशनल एग्रीकल्चर पर, एंड इसका एविडेंस भी आपने देखना है. सो आई वुड से कि आप इसका आंसर डायरेक्टली सर्च ना करें.
ठीक है, सो ये ना करें कि इसको आपने रीड किया, इसको आपने रीड किया और फिर आप देख रहे हैं कि इसका क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ना करें। व्हाट यू हैव टू डू इज, जो मैं भी यूज करती थी और मुझे काफी अच्छी टेक्निक लगती है, दैट इज कि जब आपने क्वेश्चन रीड किया, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पर सर्च नहीं करना। नो, यू हैव टू सर्च द आंसर हियर। ठीक है, जब एविडेंस क्वेश्चन है तो यहाँ पर सर्च करें। जब आपको लाइन रेफरेंस मिल जाता है तो फिर देखें कि इसका जो सपोर्टिंग ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से मूव क्या करें। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 24, 25 साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। सो यू सी दैट एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते थे कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर इंफीरियर फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाते हैं और डेट्रीमेंटल है टू द एनवायरमेंट। ठीक है, इसका एविडेंस देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू गिव यू द एविडेंस 28 to 31। ठीक है, यहाँ पर बात भी बनती हुई थी, यहाँ पर ये बात हुई थी कि एनवायरमेंटलिस्ट किस तरह से उसको देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ऑर्गेनिक फूड बेटर है, हेल्थियर है, टेस्टियर है प्लेनेट के लिए। ठीक है, ठीक है, सो इसका ये मतलब है कि कन्वेंशनल जो आपके पास फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, दैट इज डेट्रीमेंटल और इंफीरियर है। ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक। ओके, इसका बाद में आपके भी देख लें बाकी ऑप्शन, सो दे विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो विल्डरनेस की बात हो रही है यहाँ पर, शॉर्ट रन और फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक है, सो यहाँ पर सेंस ही नहीं बनाया, कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं दिया गया। मूविंग ऑन टू 26, तो रिलेशन आपने ड्रॉ करना है बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कन्वेंशनल फार्मिंग। तो ट्राई टू डू दिस वन। इसका आप देखें कि क्या आंसर हो सकता है। This is I think a difficult type of question, but here you have to read very closely. यहाँ पर आप देखें both are equally sustainable, so क्या context हमें बता रहा था कि sustainable है, try to see that। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्टली 25 के बाद यहाँ पर आएंगे, so we will be confused on this one। ठीक है, बिकॉज हमने अभी सारे क्वेश्चंस नहीं किए, so I'll say कि आप इसको skip कर दें for टाइम में। ठीक है, बिकॉज ये मेन पिक्चर, बिग पिक्चर क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, एविडेंस का था, इस वजह से हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये भी आप बाद में कर सकते थे, बट कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का स्पेसिफिक डिमेंशन था, यहाँ आपने कर लिया, ये भी स्पेसिफिक था। सो यहाँ पर आके आपने रुक जाना है, बिग पिक्चर क्वेश्चन है, सो आप इसको बेशक स्किप कर दें। ठीक है, एंड ट्राई टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 27 भी इसका एविडेंस है, सो ये स्पेसिफिक बन तो गया, बट इसको आज से कि अभी आप ना करें। ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं, स्पेसिफिक है ये काफी। ठीक है, लाइन 80 में जाना है और यहाँ पे लाइन 88 में जाना है। सो ग्लोबल एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरह का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिलिप। देयर वाज लाइन रेफरेंस, यहाँ पर हम चले जाते हैं लाइन 80 में। तो यहाँ पर आपको उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया था कि बेस्ट सिस्टम में क्या होना चाहिए, इट शुड बोरो द बेस्ट फ्रॉम बोथ सिस्टम। ठीक है, सो एग्रीकल्चर कन्वेंशनल हो या ऑर्गेनिक हो, दोनों में से ले लें बेस्ट और आपका आइडियल एग्रीकल्चर सिस्टम बन सकता है। ठीक है, सो दैट वाज द पॉइंट है। Try to match this idea with your options. So option B will make sense. ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर होने चाहिए इन द सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, वे द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नो, इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं हुई थी। फोकसेस प्राइमरीली ऑन यील्ड परसेंटेजेस एंड ग्लोबल मार्केट्स, नो। ठीक है, puts on nutritional value of produce first and foremost, no, इस तरह की कोई बात नहीं होती, so just try to eliminate that। ठीक है, 88 में शेयर का मतलब देखना है आपने, so
move on to options and try to see contextual meaning क्या बन रहा है. Context में जाए 88 में and then see the sheer calories, but for delivering sheer calories. So यहाँ पर आप देखेंगे कि वो क्या बात बताना चाह रहे हैं. So try to see that. ठीक है. So sheer calories provide करने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट कैलोरीज. Actually, it does not make sense. Abrupt calories. No, abrupt तो हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. Not for calories. Steep. So ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं मिला है. Pure calories, yes. क्योंकि कैलोरीज की बात हो रही है, so pure हो सकती है. Not these words are used in this context. ठीक है. So इसको आपने क्रॉस आउट कर देना. I hope that is making sense. अच्छा, now let's come to next question. अब आप आगे देखेंगे फिगर क्वेश्चन है. ठीक है. So फिगर क्वेश्चन पर जाने से पहले इसको देख लें. So ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल क्या रिलेशन है. So don't go to these options but go to these options. ठीक है. So इसमें देखिए कि कहाँ पर आपको रिलेशन क्लियरली उन्होंने बताया है जहाँ पे दोनों की बात होगी. So 13 to 14 में जाए, 22 to 26, 51 to 53 and 61 to 65. So you will see your result. So actually D is the right option. इसका हम देखते हैं. White is D. 61 to 65 में क्या बात हो रही है दोनों टेक्निक्स की. Okay, so here we go. So the main difference is nitrogen, the chemical key to plant growth. Conventional agriculture makes use of इतने metric tons of synthetic fertilizer. ठीक है. और enable करता है faster growth. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा then the slower release of nitrogen from the compost or cover crops used in organic. So यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, right? दोनों का कंपैरिजन आपको उन्होंने बताया है. So here it is. ठीक है. यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल गया and we can directly see that option C is taken. ठीक है. इसके साथ आप जब कंपेयर करेंगे 27 के डी पार्ट से, so it is going to be C. कि जो नाइट्रोजन यूज हो रहा है, बिकॉज दे स्टेटेड कि नाइट्रोजन यूज हो रहा है मगर कन्वेंशनल में है जो वो कहाँ से आता है और इस तरह से आपको. ओके. कन्वेंशनल में सिंथेटिक सोर्सेज से आता है. दैट वाज द मेन आइडिया. ओके. सो यू कैन ट्राई टू रीड द अदर ऑप्शंस और हमेशा इसको देखा करें बिकॉज समटाइम्स वी चूज अदर ऑप्शन, इट इज नॉट राइट और फिर भी हम उसको सिलेक्ट करके जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं. सो डोंट डू दिस. जस्ट ट्राई टू रीड ऑल द ऑप्शंस एंड देयर शुड बी एनीथिंग दैट इज गोइंग टू मेक इट इनकरेक्ट. ठीक है. सो ये टेक्निक बहुत यूजफुल होती है कि आपकी ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो रही है तो देयर इज सम वर्ड, एक वर्ड भी हो सकता है या 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं या होल सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो उसको इनकरेक्ट बना रहे हैं. तो ट्राई टू सी कि क्या ऐसा वर्ड है जो इसको इनकरेक्ट बना रहे हैं. जब उसको आप जस्टिफाई कर लेते हैं फिर उसको एलिमिनेट करके नेक्स्ट में मूव करें. फिर उसमें देखें कि मेकिंग सेंस और नॉट एंड देन आप बाकी ऑप्शंस के लिए करें. ठीक है. सो ऑलवेज लुक फॉर एविडेंस फॉर योर आंसर. ओके. देन वी गो टू आवर फिगर्स. सो फिगर 1 में आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट हो रही है बाय फिगर 1 एंड फिगर 2 में भी आपने देखना है कि कौन सा क्लेम सपोर्ट हो रहा है बाय फिगर 2. सो फिगर 1 पे हम चलते हैं. सो दिस इज आवर फिगर 1. तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, जस्ट ट्राई टू skim your figure. ठीक है. सो स्किमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्किमिंग आप पैसेज में भी यूज करते हैं. पैसेज में किस तरह से यूज होती है कि हम हर एक वर्ड को क्लोजली रीड नहीं कर रहे होते, राइट. इट्स नॉट कि हम हर वर्ड को बहुत क्लोजली रीड करें और लास्ट में हमारे पास टाइम ना हो एंड देन वी रश टू आवर लास्ट मिनट्स. नो. व्हेन वी रीड, सो वी रीड विद फोकस ऑन सम पॉइंट. ठीक है. जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है.
इसी तरह जब आप स्किम कर रहे हैं, सो स्किमिंग में भी आपने जब पढ़ना है, सो जस्ट ट्राई टू रीड द टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक यील्ड एज अ परसेंट ऑफ कन्वेंशनल यील्ड बाय क्रॉप टाइप। ठीक है, दोनों की परसेंटेजेस का रिलेशन बताया हुआ है और इसका क्रॉप टाइप बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, एट 100% द ऑर्गेनिक यील्ड इज द सेम एज कन्वेंशनल यील्ड, सो दोनों सेम होंगी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ईच क्रॉप इज शोन इन पैरेंथेसिस, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है वो शोन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीड कर लें, ये ऑल क्रॉप्स के लिए, ये फ्रूट के लिए, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, आपको बता दी इंफॉर्मेशन। अगर अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं हो रहा है, दैट इज फाइन। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं ऑप्शन पे, तो हमें आइडिया मिल जाता है। अच्छा, इसको देखें, so try to match it with your figure। अब यहाँ पर आपने फिगर्स में हमेशा हर ऑप्शन को चेक करना है। So first is stating the organic yield as a percentage of yield, conventional yield is greater for vegetables than for fruits। So देखें क्या वो greater है। The organic yield as a percentage of conventional yield is similar for cereals and all crops। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन एक्सीड करती है या नहीं, और इसके बाद ग्रेटर है फॉर दिस देन दिस, तो ट्राई टू सी दैट। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें ऑप्शन ए को देखते हैं कि क्या वेजिटेबल्स के लिए ग्रेटर है या नहीं एज कम्पेयर टू फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये आपका फ्रूट्स का है, ये वेजिटेबल का है, सो इज इट ग्रेटर, वेजिटेबल्स ग्रेटर है या फ्रूट्स, ट्राई टू सी। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रूट आपको यहाँ शोन है, वेजिटेबल्स यहाँ शोन है, तो लेट्स सी। ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पर वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है। It's not greater for vegetables than fruits. Actually, fruits is greater than vegetables, so it is out. Let's move on to B. So similar है cereals और all crops के लिए, देख लेते हैं cereals and all crops। Sorry, it's figure 2। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, सो एक्चुअली दे आर इन द सेम लाइन, राइट, इसी परसेंटेज पे। ठीक है, सो इसका मतलब है दोनों की परसेंटेज सेम है। ओके, सो इस तरह से आपने चेक करना है। अब हमें ये नहीं देखना कि ये ऊपर है तो ये ज्यादा है इसमें वैल्यू, नो, दे आर इन द सेम कॉलम, सो दे आर हैविंग सेम परसेंटेज। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस incorrect है because they are wrongly presenting the data। ठीक है, so C भी out हो जाएगा और D भी और A भी, so B is the answer। Let's move on to question number 31। So figure 2 में आपने देखना है कि कौन सा claim support हो रहा है। So again figure 2 को skim कर लेते हैं। figure 2 में भी आपको percentage provided है, organic yield as a percentage of conventional yield by species। स्पीशीज ये है, और उसी तरह की आपको एक फिगर शोन है, अगेन वही बात उन्होंने यहाँ पे भी की। ठीक है, सर स्पीशीज थी यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉप्स है, क्रॉप टाइप। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन। सो ऑप्शन देखें कौन सी सेंस मेक कर रही है, ट्राई टू मैच विद द फिगर। ग्राफ की बेशक आप लोग पिक्चर ले लें और फिर देखें कि ऑप्शंस कौन से सूट कर रहे हैं ग्राफ में। So here, is A making sense? So of the organically grown species represented, soybeans have the lowest yield। क्या इसमें soybeans की lowest yield है? Let's move on to that। The soybean is this। So ये सबसे नीचे तो है, but it is not having the least amount because यहाँ पर जो percentage है वो इसकी ज़्यादा शोर है। ठीक है, ये हमारा lowest होगा, this one, but not this।
So this option is entirely wrong. Just skip this, like इसको आप eliminate कर दें because इसकी lowest yield नहीं है. B, C और D को check करें. So actually D is the right option. इसमें लिखा है the organically grown species represented have lower yields than their conventionally grown counterparts do. अब ये वाला जो claim है वो actually paragraph जो हमारा passage था उससे भी support हो रहा है. ठीक है, so figures are given to you because they are actually supporting your messages. ठीक है, so इस जैसे उन्होंने दी थी, so ये वाला idea जो है ये right है. ठीक है, so pick it and we can move on to your next passage. ठीक है, so इसमें आप देख लें A, B, C, they are not rightly representing the data in the figure, so they are out. Okay, इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये लोग कैसे रिप्रेजेंट है. ठीक है, तो ये आपको उन्होंने बताया था कि 100% पे इज द सेम, तो इससे पहले जो है वो ये परसेंटेज होता है. ठीक है, सो कन्वेंशनल से कम है, एक्चुअली इट इज राइट. ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, अब आपने अगर ये प्रैक्टिस कर ली है, जस्ट डोंट पॉज. अब ये ना हो कि आप लोग ये करके तो आप सोचें कि हमारी बहुत प्रैक्टिस हो गई है. अब आप लोगों ने प्लान जो फॉलो करना है व्हाट इज दैट, एक तो हमारी क्लासेस होंगी पर मंथ जनवरी, तो क्लासेस को फॉलो करें एंड माय टिप्स दैट आई गिव बिकॉज दे हेल्प मी टू get a very good score, so I want you guys to follow those tips as well. So I want you guys कि आप लोग क्या करें, एरिका की बुक करें, इंग्लिश राइटिंग and reading because you are giving LCAT, तो आप old SCT बुक को देखें. ठीक है, डिजिटल वन नहीं. अगर आपने डिजिटल SCT देना है तो फिर आप उसको फॉलो करें, बट इफ यू हैव टू गिव LCAT तो फॉलो दिस. जो खान अकेडमी भी आपने न्यू वर्जन नहीं करना, ओल्ड SCT वाला करना है. ठीक है, और इसके अलावा वोकेबलरी ये मैंने आपको बताई थी कि वोकेबलरी करें the list that is sent. ठीक है, 262 वर्ड्स है. उसके अलावा भी अगर आपको मिलती है सच रिलेटेड वोकेबलरी वो करें. डोंट मेमोराइज ऑल द वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी, इट इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी. ठीक है, वो वाले आपके वर्ड्स टेस्ट नहीं होते, स्पेसिफिक वोकेबलरी टेस्ट होती है, तो फोकस ऑन दैट. ओके, एंड डू पास पेपर्स. सो पास पेपर्स आप कॉलेज बोर्ड के ऑफिशियल करें. ठीक है, ऑफिशियल पेपर्स आपके कॉलेज बोर्ड के. तो दीज आर द मस्ट थिंग. और इसके अलावा आपने जो करना है वो ये है कि आर्टिकल रीडिंग. तो हर रोज ट्राई करें कि एक आर्टिकल जरूर पढ़ें और वोकैबुलरी भी हर रोज करें, खान अकेडमी हर रोज करें. पास पेपर बेशक आप 2 days के बाद किया करें. ठीक है, एरिका की बुक भी और राइटिंग रीडिंग की भी आप अपना प्लान बनाएं एंड ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स इन दीज बुक्स. ठीक है, so this is it from this lecture. I hope you all learned those strategies and जो आज apply हमने किया उससे भी आपकी learning हुई होगी. So hopefully I'll see you in the next lecture. Until that, take care.